and start. Yes, very good morning, boys and girls. I said, very good morning, boys and girls. We started discussing the various sources of finance, जिसमें borrowed capital हम discuss कर रहे हैं. Borrowed capital में yesterday we have started discussing about commercial banks and the various kinds of loans which are provided by commercial banks. Commercial bank के अलग-अलग तरह के loans हैं. इतना नाही, इथं बस आहे समोर. इथं मागं नाही बसायचं गौरव सोबत. इथं बस आहे समोर. आलं लक्षात. हां. मागं गेलं तरच बघ तू. मग मी खेटल तुला. माझं खेटणं परवडत नाही. मी खूप काही दाबतो मग गाल. So when we talk about the borrowed capital, we have been discussing about the various heads of borrowed capital. जैसे first point हमने जो देखा था that was debentures. जब पहला point हमने discuss किया that was debentures. After discussion of debentures we started discussing about deposits. After the completion of the discussion of deposits we also discussed on the ADR and GDR. ADR GDR के discussion के बाद yesterday we started discussing about commercial bank. Commercial bank के बारे में common बात ये है कि commercial bank is one of the most common source of borrowed capital. हालांकि डिबेंचर्स वगैरह इतने पॉपुलरली यूज़ नहीं किए जाते हैं क्योंकि डिबेंचर्स डिपॉजिट्स का ऑप्शन सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास अवेलेबल होता है. हमारे यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम देखें जॉइंट स्टॉक कंपनी ज़्यादा सोल ट्रेडिंग कंसर्न हमारे इंडिया में ऑपरेट करते हैं. सो मोस्ट कॉमनली सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल विच इज सीन अक्रॉस इंडिया इज द लोन्स और एडवांसेस विच वी टेक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. कल मैंने कहा था कि बैंक अलग अलग तरह के लोन्स और एडवांसेस देते हैं to meet the long term requirements of fixed capital requirement. What is provided by bank is term loan. What is provided by bank is term loan. It is either medium term loan or either it is long term loan. Either it is medium term loan or either it is long term loan. Medium term loan is for a period of more than 1 year or less than 5 years, and long term loan is for a period of more than 5 years. Yes or no? Yeah, na, right? So this was term loan and its procurement of finance to meet up the fixed capital requirement. To meet the fixed capital requirement. Okay. Then after we started seeing about how does bank or commercial bank help in meeting up the working capital requirements. Business के working capital requirement को meet up करने के लिए किस हिसाब से बैंक जो है वो help करती है, जिसमें अलग अलग heads हम देख रहे हैं. जिसमें पहला head देखा हमने overdraft. What is overdraft? Overdraft is a facility which is provided to a current account depositor which is a business after looking into the transaction and track record, where the account holder or a current account holder or a business is allowed to overdraw the amount in excess of whatever they have in their account. उनके अकाउंट में जितना पैसा है उस अकाउंट से भी ज़्यादा ओवरड्रॉ करने का अधिकार उन्हें बैंक प्रोवाइड करती है. This overdraft is for a very short period of less than 30 days and interest is charged accordingly on the number of days for which the amount is used and for the period for which they are using. Okay. कल हमने ये बात की थी, पॉइंट था हमारा ओवरड्राफ्ट. यहाँ पे किसी को डाउट है? डज एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. कैश क्रेडिट. ओसीएम के छोड़ के बाकी डज एनीवन नो व्हाट इज कैश क्रेडिट? डज एनीबडी नो व्हाट इज कैश क्रेडिट? ओसीएम का छोड़कर सीसी अकाउंट कैश क्रेडिट के बारे में पता है? यस, एनीबडी? माधव शर्मा, हर्ष शर्मा, व्हाट इज कैश क्रेडिट? आनंद कातरेला, माट्रा, बताओ बिजनेस बैकग्राउंड. व्हाट इज कैश क्रेडिट? व्हाट इज श्रेया, व्हाट इज कैश क्रेडिट? तुम्हें तो पता है तो उसी में ना. सानू, व्हाट इज कैश क्रेडिट? इशिता, व्हाट इज कैश क्रेडिट? हाँ हाँ Cash credit is a type of an advance. Cash credit is a type of an advance which is given to meet up the working capital requirements of the business. To meet up the working capital requirements or cash requirements of a business. We all know for the day-to-day production process, what we require is fixed capital or working capital? Working capital. Okay. And whatever the tenure of working capital it is there, is it for a short period or is it for a long period? It is always for a short period. And the tenure of the working capital requirement depends upon the production cycle. The production cycle and the sale and purchase terms and condition.
whatever are the company's purchase and sale terms and conditions, and also the production cycle, that is the number of days which are required to produce the commodity, will all decide the working capital requirement. Will all decide working capital requirement. Starting with discussing the working capital requirement. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें कैश की जरूरत होगी, और इस कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज कैश क्रेडिट. इट इज कॉल्ड एज कैश क्रेडिट. हाउ डज दिस ऑपरेट? अंडरस्टैंड. लेट्स से I have a furniture factory, right? I have a furniture factory where I produce different kinds of furniture, chair, table, bed, etc. etc. ऐसे बहुत सारे फर्नीचर जो है, शोकेस, ऐसे बहुत सारे फर्नीचर हम हमारे फर्नीचर फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं. अब यहाँ पर that this is my factory building. This is my factory building where I produce all the furniture items. Okay. Now point to be understood here is कि मेरे बिजनेस में परचेज जो है, परचेज इज इन कैश एंड सेल इज ऑलवेज ऑन 30 days credit. Sale is always on 30 days credit. Whatever sale I have of my business is on 30 days credit. यानी जो वेंडर मेरे से फर्नीचर खरीदेगा उसको मैं कितने दिन का उधार दूंगा? 30 दिन का उधार. 30 दिन के बाद उससे मेरे से पैसा आएगा. आया ना? ए नलगिलकर, कितने दिन के बाद पैसा दूं? कितने दिन के बाद पैसा देगा वो मुझे? 30 दिन के बाद. He'll be paying me his my amount dues after 30 days. Now 30 days is the sale credit, but for the production cycle on an average let's consider it is 5 days. किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए, किसी भी फर्नीचर के आइटम को बनाने के लिए ऑन एन एवरेज द टाइम पीरियड लगता है दैट इज 5 days. व्हाट इज द प्रोडक्शन साइकिल? 5 days. 5 दिन लगते हैं किसी भी एक आर्टिकल को बनाने के लिए. और क्रेडिट कितना दिया है हमने? 30 days का. 30 days का हमने क्रेडिट दिया है. 5 दिन हमारा प्रोडक्शन साइकिल है. इन ऑल वर्किंग कैपिटल मुझे कितने दिन के लिए लगने वाला है? 35 days. यस और नो? कितने दिन के लिए लगने वाला है हमें वर्किंग कैपिटल? फॉर अ पीरियड ऑफ 35 days. समझ में आया कैसे? प्रोडक्शन साइकिल का टाइम यानी जितने दिन अपने को बनाने को लगेंगे वो, और आगे हम क्रेडिट पे जितने दिन बेच रहे हैं माल वो, ये दोनों टाइम पीरियड मिलाकर हमें ये समझ में आता है कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने दिन के लिए होगा. अगर हमने कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कोई चीज़ बनाई है तो उसको बनने के लिए 5 दिन लग गए. फिर ये 10,000 रुपये का माल हम जब उधार बेचेंगे तो वो कितने दिन के बाद पैसे आएंगे मेरे पास? 30 दिन के बाद. तो 10,000 का प्रोविजन मुझे कितने दिन के लिए करना पड़ेगा लगभग? It will be for a period of 35 days. Are you getting my point, everyone? Following? Are you following my point? Right? हमें 35 days के लिए जो है वो सारा प्रोविजन करना पड़ेगा. We'll have to make a provision for a period of 35 days. Now we go to bank and say, ये तो एक ट्रांजैक्शन का बोला मैंने, ऐसा सारा की सारा लेट्स से हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए का सेल है. कितने का सेल है भाई? 10 लाख रुपीज का. और 10 लाख रुपीज का सेल एक ही डे होता है कि नहीं? कोई पहले दिन होता है, कोई दूसरे दिन होता है. सम इज ऑन द फर्स्ट डे, सम इज ऑन द सेकंड डे, सम इज ऑन द थर्ड डे. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? एवरी डे वी हैव डिफरेंट सेल्स. कोई दिन 10,000 है, कोई दिन 1 लाख है, कोई दिन 2 लाख है, कोई दिन 50,000 है, कोई दिन 80,000 है, कोई दिन 60,000 है. ऐसे पूरे अलग अलग दिनों पे अलग अलग सेल रहेगा. और हर बार जब सेल होगा वहां से आके 35 दिन के बाद मेरे पास पेमेंट आएंगे, राइट? एक तो बात पक्की है, पैसा सर्कुलेटिंग बनी है जो घूमता रहेगा, राइट? जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे वैसे वैसे उसको वापस कन्वर्ट करके हम रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके वापस से सेल करेंगे. फिर से पैसा 35 दिन के बाद आता रहेगा. मोटा मोटी ये 10 लाख रुपए का प्रोविजन मुझे कितने दिन के लिए करना है? कितने दिन के लिए करना है? 35 days. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई कैश क्रेडिट. पहले तो सबसे पहले ये सवाल समझो फंडामेंटल, कैश क्रेडिट क्यों? और उसके बाद हम आगे समझेंगे कि आगे का क्या है, कैसे है कैश क्रेडिट, कैसे ऑपरेट करते हैं. जैसे मैंने कल जब पढ़ाया था, पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या समझाया था? वाई ADR एंड GDR. ओके, अंडरस्टूड द लॉजिक वाई ADR एंड GDR. जब हमने वाई ADR एंड GDR समझा उसके बाद हम आगे चीजें समझने के लिए गए कि ADR और GDR ऑपरेट कैसे करता है. ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो वाई कैश क्रेडिट. वाई कैश क्रेडिट, एक बार पहले इसका लॉजिक समझ लो. वाई कैश क्रेडिट, अगर इसकी लॉजिक समझ में आए तो आगे कैश क्रेडिट का जो भी सिस्टम है वो समझाना मेरे लिए आसान होगा. नो अंडरस्टैंड.
10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट मुझे कितने दिन के लिए? 35 दिन के लिए। बट फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, ये 5 दिन प्रोडक्शन साइकिल हम कंसिडर नहीं करते हैं, वी आर कंसिडरिंग 30 डेज ओनली फॉर इजी ऑफ द कैलकुलेशन पर्पस। व्हाट आई एम कंसिडरिंग इज 30 डेज, यानी एक महीने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत हमेशा रहेगी। कब रहेगी? हमेशा रहेगी। अगर मैं बैंक से टर्म लोन लेता हूं, अगर मैं बैंक से टर्म लोन लेता हूं तो टर्म लोन के ऊपर फ्लैट इंटरेस्ट लगता है। टर्म लोन के ऊपर फ्लैट इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर 12% इज द इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म लोन्स विच इज गिवन बाय द बैंक। व्हाट इज द इंटरेस्ट? 12%। सो 12% 10 लाख का कितना हुआ? 1,20,000। Now is it compulsory that every month I'll have sale of 10 lakh rupees? Is it compulsory that every month I'll have sale of 10 lakh rupees? You all know the situation. Few months before we had 3 months of complete lockdown. हाँ या ना? 3 महीने में मेरा सेल क्या था? 3 महीने में मेरा सेल क्या था? 0। 3 महीने में मेरा सेल क्या था? 0। 3 महीने में मेरा सेल क्या था? 0। अब 3 महीने में मेरा जब सेल ही नहीं है, उसके बावजूद अगर मैंने टर्म लोन लिया है तो क्या उसका ब्याज मुझे कंपलसरी देना पड़ेगा? हाँ या ना? तो 1,20,000 12 महीने का, तो महीने का कितना हुआ? 10,000। यानी 3 महीने का 30,000 रुपए का ये इंटरेस्ट मुझे कंपलसरीली पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लिया है बैंक का? टर्म लोन। जब आप टर्म लोन लेते हो तो आपकी जो लाइबिलिटी होती है इंटरेस्ट की, वो फिक्स हो जाती है। आपकी लाइबिलिटी जो होती है वो इंटरेस्ट की, वो फिक्स हो जाती है। अब हमारे केस में कितनी है हमारी फिक्स लाइबिलिटी? 1,20,000। अगर मैं टर्म लोन लूं तो मेरे सालाना इंटरेस्ट कितना जाएगा बैंक को? 1,20,000। चाहे फिर कोई महीने में 10 लाख का सेल हो या ना हो, दैट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ द बैंक। व्हाट बैंक वांट्स इज एंटायर 1,20,000 ऑफ इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब मैं अगली लॉजिक समझाऊंगा, ऐसे तुम्हें समझ में आएगा व्हाई कैश क्रेडिट। Cash credit is a sort of an advance where credit facility is provided to businesses, and interest is charged only, क्या बोला मैं यहां पर? Interest is charged only on amount used. Interest is charged only on amount used for the given period. For the given period. Am I okay? लॉजिक समझने की कोशिश करो। जनवरी टू दिसंबर ये एक साल में कंसिडर कर रहा हूं। मैंने अगर टर्म लोन लिया है 10 लाख रुपए का, इफ आई हैव टेकन अ रोहित सर काय होतं? हँग झाला तो वन नोट चालू करताना लेक्चरसाठी, तर याच्यामध्ये हे नाही करायचं, इंटरनेट बंद ठेवायचं, ते लवकर घेऊन ये परत. Yes, maintain silence. Yes. चलिए प्लीज पे अटेंशन. अब मैंने एग्जांपल क्या लिया है, हम कंपेयर कर रहे हैं. हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? झालं का? टर्म लोन और कैश क्रेडिट. टर्म लोन और कैश क्रेडिट को कंपेयर कर रहे हैं. तो बंद के लिए इंटरनेट.
इंटरनेट बंद कर। चलिए, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट वी आर कंपेयरिंग, कंपेरिजन किस चीज का हो रहा है हमारे यहाँ पर? वी आर कंपेयरिंग term loan and cash credit. What we are comparing right now is term loan what we are comparing right now is term loan and cash credit. Yes or no? Please pay attention. 2 मिनट ध्यान दीजिए लॉजिक की तरफ, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या क्यों है, क्यों क्या है। Yes. Okay. Please. Now understand the logic of the difference between term loan and cash credit. See, when we talk about term loan, जब मैं term loan की बात कर रहा हूँ, let's say if I have taken term loan of 10 lakh rupees at the rate of interest of 12% per annum, at the rate of interest of 12% per annum, what is the amount of interest I have to pay? Flat 1,20,000. 1,20,000. कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता। कैश क्रेडिट में अगर मेरी 10 लाख की कैश क्रेडिट की लिमिट अगर सैंक्शन है, इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट विच इज गिवन. Interest is not calculated on the entire amount of cash credit which is given. Other than that, interest is calculated. सरल बसा. Interest is calculated. Interest is calculated on the amount which is utilized for a certain period. अब मैं जो बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना. टर्म लोन वाली इस पर्टिकुलर पार्ट में जैसे मैंने कंसीडर किया जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, 2 मिनट नीचे की तरफ लेता हूं तो आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ आई एम शोइंग यू द सेल रिकॉर्ड ऑफ द फर्नीचर फैक्ट्री. ओके, फर्नीचर फैक्ट्री का आपको सेल रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ये मेरे 12 महीने का कैलेंडर है. हाँ या ना? दिस इज माय 12 मंथ्स कैलेंडर. जनवरी मंथ में 10 लाख रुपए सेल था क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये साल में थोड़ा ओपन हुआ था. फरवरी में वापस 10 लाख रुपए का सेल था, लेकिन मार्च से फिर से लॉकडाउन जैसे संकेत आने लगे. मार्च में मेरा सेल हो गया 5 लाख रुपए. अप्रैल में तो बंद ही था पूरा, दिस वाज जीरो. मई वाज आल्सो एज गुड एज फुल्ली क्लोज, सो यहाँ पर भी था जीरो. जून में फिर से स्टार्ट हुआ लेकिन हाफ ऑफ चालू, तो यहाँ पे फिर से कितना हुआ मेरा सेल? 5 लाख रुपए. जुलाई मंथ में वापस से थोड़ा सा पिकअप आया तो वहाँ पे आया 8 लाख रुपए. फिर अगस्त में हुआ मेरा 9 लाख रुपए. सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ से आगे समझ लो 10 लाख रुपए वापस सेल रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द सेल? सेल समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ या ना? कैश क्रेडिट और टर्म लोन के बीच का फर्क अगर समझना है तो यहां पर ध्यान दो.
अगर मैंने टर्म लोन लिया है of 10 lakh rupees, interest will be charged at 12% flat. So what will be the interest which I have to pay is 1,20,000. What is the interest I have to pay is 1,20,000. But that is not the case when it comes to cash credit. In case of cash credit, interest is calculated only on the amount of the limit which is utilized, and that to be for the period for which it is being used. Are you getting my point? सबसे पहले तो ये सॉर्ट करो कि कितने ऐसे मंथ है जहां पे पूरे 10 लाख रुपए हमने इस्तेमाल किए हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यस और नो? ये 6 ऐसे महीने हैं जहां पर मैंने कैश क्रेडिट का पूरे 10 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है. हाँ या ना? यस और नो? These are the months where I have utilized the entire cash credit for 6 months. Where I have utilized the entire cash credit for 6 months. So ये 6 महीने के लिए इंटरेस्ट तो पूरा लगेगा. कैश क्रेडिट का भी लोन 12% इंटरेस्ट से है, टर्म लोन भी 12% से है. दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है. इसका भी 12% है और इसका भी 12%. रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है. बड़ों पे समझ की बात होती है. अगर कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट रेट कम होता तो हर कोई इंटरेस्ट कम रहेगा, वही प्रोडक्ट लेगा. दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है. 12% टर्म लोन का है और 12% कैश क्रेडिट का है. उसके बावजूद हमें यह समझना है कि व्हाई डज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर सीसी अकाउंट और कैश क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो उसका लॉजिक अब समझाता हूं. 6 महीने के लिए हम पूरे 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ या ना? 12% पर एनम के हिसाब से 1,20,000 रुपए सालाना रेंट होता है. तो महीने का ब्याज कितना हुआ? 10,000 रुपए. तो 6 महीने का ब्याज कितना हुआ इशिता जी? 6 महीने का ब्याज कितना हुआ? 60,000. कितना हुआ? 60,000. हाँ या ना? Yes or no? Now there are few months in which I haven't withdrawn a single rupee from my cash credit account. जितना सेल है उतना मैंने कैश क्रेडिट से पैसा निकाला, ऐसा मैं यहाँ पर अज्यूम करूँ. व्हाट आई एम अज्यूमिंग? जितना मेरा सेल हुआ है उतना मैंने मेरे कैश अकाउंट से, कैश क्रेडिट अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया. अब जिस मंथ में सेल ही नहीं है, अन्य सिर्फ पैसे विड्रॉ करूंगा क्या मैं सीसी अकाउंट से? नहीं करूंगा. तो मुझे बताओ दाइमा जी, कितने ऐसे मंथ है जहां पर जीरो सेल है? हाँ, आपका स्वागत है. मंडळातर्फे आपला शाल श्रीफळमध्ये सत्कार करू. शेवटी तुम्ही आलात. अजून किती दिवस येताल त्याबद्दल सूचना पहले द्यावा. म्हणजे हाँ, ट्रिप तक आएंगे, ट्रिप के बाद वापस एब्सेंट रहेंगे. चलो हाँ बोलो, कितने ऐसे मंथ है जहां पे जीरो सेल है? 2. देयर आर 2 मंथ्स वेयर वी हैव जीरो सेल, अप्रैल एंड मई. यस और नो? तो जब जीरो सेल है, मैंने क्या कहा? जितना सेल है उतना हम पैसा लेंगे. जब सेल ही नहीं है तो कैश क्रेडिट से अन्य सिर्फ पैसे उठाएंगे क्या? हम नहीं उठाएंगे. तो भाई अब ये 2 महीने में मेरा सेल क्या है? 0. सो व्हाट इज द अमाउंट आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम माय कैश क्रेडिट अकाउंट? 0. If I am withdrawing 0 amount from my cash credit account for a period of 2 months, the interest which will be charged will also be 0. So for 2 months, 2 multiplied by 0, बता बालबीर, 2 multiplied by 0 कितना होता है? 2 multiplied by 0, 0. वाह, थैंक यू. अटैक आता देख रहेगा मेरे को. नशीब तो 2 बोला नहीं. So for 6 months, the interest is 60,000. For 2 months, it is 0. 6 और 2 8 हो गए. अब बचे कुछ महीनों का देखेंगे हम. 5 हाफ कितने हैं? 1 और 2. फॉर इजी पर्पज ऑफ कैलकुलेशन लेट अस कंसीडर दिस ऑल्सो 5. उतना मगजमारी करते बैठने की जरूरत नहीं, इसको 5-5 कंसीडर करो. अब 5-5 लाख वाले कितने हैं? 4. 5-5 लाख वाले कितने हैं? 4. अब मैंने 5 लाख इस्तेमाल किया, 10 लाख पूरा इस्तेमाल करूंगा तो इंटरेस्ट कितना है? 10,000. और 5 लाख इस्तेमाल किया तो इंटरेस्ट कितना हुआ सानो? कितना हुआ? 5,000. कितना हुआ? 5,000. सो 4 months, 4 months multiplied by 5,000 is equal to 20,000 is equal to 20,000. सो 4 महीने का 20,000, 2 महीने का 0 और 6 महीने का 60,000. कितना हुआ? 20 plus 60. कितना हुआ? 20 plus 60. 20 plus 60 कितना हुआ? So the interest which is to be paid on cash credit facility will be only 80,000. Will be only 80,000 and not 1,20,000. It will be 80,000 and not 1,20,000. Are you getting my point?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बताओ, आप बिजनेसमैन हो, एक तरफ पैसा लेके आपको 1,20,000 रुपए का ब्याज भरना पड़ रहा है, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा फिक्स हर महीने ये बता सकता है कि कोई भी बिजनेस नहीं बता सकता. नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस कैन एग्जैक्टली से दैट दिस मच इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आई रिक्वायर दिस मंथ. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में डिफर फ्रॉम एवरीवन. जैसे सेल बदलता है, चीजें बदलती है, रॉ मटेरियल महंगा होता है, सस्ता होता है, ऐसे हर महीने में मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदलता रहता है. So if every month my working capital requirement changes, I exactly don't know what is the amount of working capital requirement I have. ऐसे केस में टर्म लोन लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अब जैसे मैंने टर्म लोन ले लिया, 2 महीने मेरे पास सेल नहीं है, मैंने बैंक को बोला मेरे को 2 महीना काम नहीं है, पैसा तुम्हारे पास रखो, 2 महीने के बाद वापस टर्म लोन दे देना. ऐसा नहीं, एक बार टर्म लोन जितने टाइम के लिए ले लिया उतने टाइम का आपको ब्याज देना ही पड़ेगा. आप बैंक को पैसे वापस दो मत दो, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ पूरे साल का ब्याज चाहिए, मतलब चाहिए. अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल क्या है? टर्म लोन सुटेबल है, कैश क्रेडिट? टर्म लोन सुटेबल है, कैश क्रेडिट? व्हाट इज मोर सुटेबल? व्हाट इज मोर सुटेबल? व्हाट इज मोर सुटेबल? वो आदमी को बुला रहे भाई, उसको यहीं बैठाना पड़ता है. रोहित काका, व्हाट इज मोर सुटेबल इज कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट पे कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं हम? 80,000. टर्म लोन पे कितना भर रहे हैं? 1,20,000. 1,20,000. हँग झाला बघ परत. $1,20,000. येस और नो? हा या ना? बघ पटपन काय आहे, कितना है? 1,20,000. आता राहू दे, आता डिस्टर्ब नव्हतं, पुढे ब्रेकच्या नंतर लॅपटॉप यूज कर. हाँ चलो, पॉइंट समझ में आया? कैश क्रेडिट का पॉइंट समझ में आया? यस और नो? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई कैश क्रेडिट? व्हाई कैश क्रेडिट, ये सवाल समझ में आया क्या? देखो इतना सा पैराग्राफ है, दो लाइन का, समझाने के लिए मेरे को भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इस तरह की फंडामेंटल लर्निंग नहीं होती. फंडामेंटल लर्निंग तभी होगी जब आप कंसेप्ट की गहराई तक जाओगे, अपने आप से सब चीजें पूछोगे, और इस हिसाब से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा. ये सब चीजें बताने करने के लिए उस सर को भी मालूम होना चाहिए कि कैश क्रेडिट क्या है, उसको खुद को भी मालूम होना चाहिए कि कैश क्रेडिट ऑपरेट कैसा होता है. सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाना कोई बात नहीं होता, टेक्स्ट तो कोई भी पढ़ा सकता है. अंदर के आपके कंसेप्ट के डेप्थ तक जब तक आप जाओगे नहीं, तब तक आपको फंडामेंटल लर्निंग क्या है वो समझ में नहीं आएगा. राइट? डज एवरीवन नाउ हैज द आंसर व्हाई कैश क्रेडिट ओवर टर्म लोन? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? ओके. हाँ 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 लेकिन कोई रीजन की वजह से उसको 6 महीने में पूरे पैसे मिल गए, हाँ, फिर बाकी के महीने के ब्याज भरना पड़ता है. एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, कुछ नहीं कर सकते. आपको पैसे फोर क्लोजर करना है तो फोर क्लोजर के उनको पैसे देने पड़ते हैं, 6 महीने में पूरा दे दिया सब. फोर क्लोजर के पैसे देने पड़ते हैं. बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ. अभी हमने एंडेवर खरीदी है. एंडेवर जब खरीदी तो हमने 3 साल का लोन लिया था, उसका लगभग 25-27 लाख, 25 लाख का लगभग कुछ लोन लिया है, बाकी के 15 लाख तो डाउन पेमेंट भरे, 25 लाख का लोन लिया है. लोन लिया था हमने 3 साल का. अब 3 साल का लोन लिया था, और उस 3 साल के लोन में वो जो फाइल थी वो हमारे अंकल के नाम से करवाई थी. उनको कुछ इनकम टैक्स की कुछ नोटिस आई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया एक ही साल में, पहले ही साल में. अब लोन तो वो दिखाने के लिए लेना पड़ता है, वैसे लोन की किसको जरूरत है. तो फिर मैंने बोला, हमने पहले डिसाइड किया कि अब देखो एक ट्रांजैक्शन उसका बोलना है, क्वेश्चन कैसा बनने की कोशिश करो कि सर हमने टर्म लोन लिया 1 साल के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर मेरे पास पैसे आ गए. मैं बैंक के पास गया, 6 महीने के अंदर ये लोग तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दो, अब बच्चों 6 महीने का ब्याज हम नहीं देंगे, ऐसा होता ही नहीं. टर्म लोन एक बार आपने ले लिया, चाहे बैंक के पैसे रखो मत रखो, रिटर्न करो, कुछ भी करो, जितने टेन्योर के लिए आपने पैसा लिया है उतने टर्म का आपको ब्याज देना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन सेम. या फिर इस पर्टिकुलर सीन को वो कहते हैं फोर क्लोजर. क्या कहते हैं इसे? फोर क्लोजर. जब टेन्योर से पहले अगर आप आपका लोन अकाउंट क्लोज करना चाहो तो उसे हम कहते हैं फोर क्लोजर. और फोर क्लोजर करके कुछ मतलब नहीं, जितना उनको ब्याज देना है वो बरोबर लेते हैं, फिर देने का को पैसे वापस उनको. समझ लिया कि 12 महीने के लिए तूने लोन लिया है, उसमें से 6 महीने के अंदर तू पैसा लौटा रहा है, यू आर रिटर्निंग द मनी इन 6 मंथ. तो तेरे को लग रहा है कि मेरे 6 महीने का ब्याज बचना चाहिए, लेकिन बैंक क्या बोलता है, तुमने क्या बोल कर लिए थे हमारे पास. अभी समझ ली, इसका 1 साल का डिपॉजिट है, इसको ब्याज कितने दिन का देना है. ये थोड़ी 6 महीने पहले इसका डिपॉजिट लेके जा रहा. थंब रूल क्या है?
व्हाट इज द थंब रूल ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक? बैंक ऑलवेज विंस, राइट? इसने डिपॉजिट किया 1 साल के लिए, तो इसको ब्याज कितने दिन के लिए देना पड़ेगा? पूरा 12 महीने का देना पड़ेगा ना। वो थोड़ी बोले अरे हमारा लोन वाले कस्टमर ने 6 महीने में पैसे लौटाए, डिपॉजिट होल्डर तुम भी तुम्हारे पैसे वापस लेके जाओ। इट इज अ टाइम डिपॉजिट। जितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट लिया उतना टाइम पीरियड के ब्याज तो बैंक को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तुमसे 6 महीने में पैसे लेके इसका 6 महीने का ब्याज कहां से भरेगी बैंक? बात समझ में आ रही है क्या भाई? डिपॉजिटर को तो 12 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, वो थोड़ी पैसे मांग रहा है। तुम लोन पैसे लौटा रहे हो, लेकिन इसको पैसे कहां से देंगे? ऐसा नहीं है कि पैसे लेती नहीं है बैंक, बैंक पैसे लेती है, लेकिन इस पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं फोरक्लोजर। क्या कहते हैं हम इसे? फोरक्लोजर और फोर्स क्लोजर, नॉट फोरक्लोजर, सॉरी, फोर्स क्लोजर। फोर्सफुली वी ट्राई टू क्लोज द लोन अकाउंट एंड सेटल द लोन अकाउंट। अब इस हिसाब से तुम्हारे इसमें फायदा कितना होना चाहिए? 6 महीने के ब्याज का फायदा होना चाहिए। 1,20,000 रुपये अगर ब्याज है साल का, तो 6 महीने के हिसाब से 60,000 रुपये का इंटरेस्ट तुम्हें कम लगना चाहिए। फोर्स क्लोजर अगर आप तुम करते हो, बैंक आपका पैसा तो जमा कर लेती है, लेकिन बचे हुए 6 महीने में से 5 महीने का इंटरेस्ट तो भरवा के लेती है। करोगे फोर्स क्लोजर? करोगे क्या? पैसे ऐसे वैसे देने से पड़ते। टर्म लोन का कुछ नहीं हो सकता। एक बार टर्म लोन आपने ले लिया, आपको पैसे उतना टेन्योर के इंटरेस्ट ब्याज देने ही पड़ते हैं एट एनी कॉस्ट। एनी अदर डाउट? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन ऑन कैश क्रेडिट? चलो, नाउ अंडरस्टैंड. Now does everyone understand the logic as why cash credit? Why cash credit? ये लॉजिक समझ में आया सबको? Yes or no? Now after understanding why cash credit, now let's move on to understand how the cash credit operates. ध्यान दीजिए. Bank provides 10 lakh rupees of cash credit to the business. Bank provides cash credit of 10 lakh rupees to the business. हाँ है ना, 10 लाख रुपए का कैश क्रेडिट बैंक जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड करती है. बरोबर है कि नहीं है? बदले में बिजनेस को क्या देना पड़ता है? अब तुम कल को बिजनेस करोगे, तुमने सोचा अरे सर ने हमको सिखाया था कैश क्रेडिट फैसिलिटी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो इसके हिसाब से अब मैं कैश क्रेडिट का फैसिलिटी लेना चाहता हूँ. बात समझने वाली बात है. कोई भी बैंक कैश क्रेडिट बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं देता. यू हैव टू गिव प्रॉपर्टी ऑन मॉर्गेज. यू हैव टू गिव प्रॉपर्टी ऑन मॉर्गेज टू टेक द कैश क्रेडिट. जब आप लगभग 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उनको मॉर्गेज दोगे, जैसे मैंने कहा कि फर्नीचर की फैक्ट्री है हमारे पास, तो फैक्ट्री बिल्डिंग किससे बिलोंग करती है? बिजनेस की. हाँ या ना? लेट फॉर एग्जांपल कंसीडर इट इज ओन्ड. वो जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो किसकी मालिकाना हक में है? फर्नीचर के कंपनी के, राइट? तो ये फर्नीचर की फैक्ट्री इज मॉर्गेज. गिरवी रखना मतलब मॉर्गेज करना. इंग्लिश में उसे कहते हैं मॉर्गेज करना. जब कभी हम हमारी कोई चीज गिरवी रखते हैं उसे हम मॉर्गेज करना कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम? मॉर्गेज. व्हाट इज द वर्ड वी यूज? इज कॉल्ड एज मॉर्गेज. बिजनेस क्या करेगा? अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को बैंक के पास मॉर्गेज करवाएगा. क्या करवाएगा? मॉर्गेज. और बैंक के पास मॉर्गेज करवाने के बाद सबसे पहले तो इस फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी. क्या एस्टिमेट की जाएगी? इस फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू. अभी हमने कंसीडर किया है कि फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपए. मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 15 लाख रुपए. तो जो असेट या जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दी जा रही है, नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी ही लेते हैं. वो मूवेबल प्रॉपर्टी बतौर मॉर्गेज सीसी के लिए नहीं लिया जाता. सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बतौर मॉर्गेज लिया जाता है. यानी जमीन, बिल्डिंग, फ्लैट, घर, ऐसी ही चीजें वो मॉर्गेज के लिए लेते हैं. गोल्ड वगैरह जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज के लिए नहीं लिया जाता. अब हमारा बिजनेस क्या मॉर्गेज के लिए दे रहा है? फैक्ट्री बिल्डिंग. फैक्ट्री बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 लाख. तो जो भी चीज, गुड मॉर्निंग कृष्णा कुंज, जो भी चीज हम मॉर्गेज में दे रहे हैं, जो भी चीज हम मॉर्गेज में दे रहे हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी, उस मार्केट वैल्यू के लगभग 70% इज प्रोवाइडेड एज कैश क्रेडिट. अब 15 लाख रुपए का 70% कितना होता है? व्हाट इज 70% ऑफ 15 लाख? बताओ. 10 लाख से तो ज्यादा है. कैलकुलेशन मत बताओ मेरे को.
10 लाख से तो ज़्यादा ही है, बरोबर। मुझे क्रेडिट फैसिलिटी कितनी चाहिए? 10.5 lakhs if I'm not wrong, whatever it may be. It is more than 10 lakhs. मुझे कैश क्रेडिट कितने का चाहिए? 10 लाख का। मैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी कितने वैल्यू की दे रहा हूँ? 15 लाख रुपए की। क्या मुझे फिर इजीली कैश क्रेडिट मिलेगा? यस। सो कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक टू द कमर्शियल बिजनेस only on providing a mortgage of a property and that loan which is provided is rough and around 70% of the value. ये कहीं भी तुम्हारे नोटबुक में दिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे अनुभव से तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लगभग जो हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज देते हैं, जैसे गोल्ड लोन सुना है सभी लोगों ने, समझ लो गोल्ड की कीमत आपने जो बैंक के पास दी है, अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता, आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिलता। अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड दिया है तो देखना आपको 70,000 के ऊपर का लोन कभी भी बैंक नहीं देगी। सर ऐसे 30% क्यों रखते हैं? कल को आपने सीसी अकाउंट को सेटल नहीं किया, इसका ब्याज नहीं भरा, पैसे उठा लिए, पैसे खर्च कर दिए, तो कल को घर बेचने के बाद जितने महीने तक का ब्याज पेंडिंग है इस 15 लाख से वसूल नहीं हुए, तो उसके हिसाब से वो कुछ रिजर्व्ड अमाउंट उसके अंदर रखते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही गेटिंग माय पॉइंट? कुछ रिजर्व्ड अमाउंट होता है कि कल को अगर कोई व्यक्ति अगर बैंक के पैसे डुबा दे और उसका ब्याज ना भरे 2-2, 3-3 साल का, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर करने के लिए, घर के ऊपर कब्जा लेने के लिए, बैंक का बनाने के लिए, इसको सील करने के लिए, इसको बेचने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं बैंक को, तो 4-5 साल का ब्याज कौन भरेगा? 4-5 साल का बैलेंस ब्याज जो है उस हिसाब से ही वो वैल्यूएशन रखते हैं, और वैल्यूएशन के लगभग 30% कम वैल्यू ही बतौर लोन दी जाती है। बात समझ में आया? तो कैश क्रेडिट कैसे ऑपरेट करता है? प्रॉपर्टी इज गिवन बाय मॉर्गेज बाय बिजनेस टू द बैंक and cash credit facility to meet the working capital requirements is provided by the bank to the business. What is the characteristics of cash credit? Cash credit facility. What are the characteristics we have? Cash credit facility is a facility where the interest is charged only on the amount which is utilized from the cash credit, and that to be only for the period, that to be only for the period which is being utilized. Are we okay and fine? अभी ओके एंड फाइन? समझ में आया कैश क्रेडिट? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैश लोन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं कॉल लोन। कैश लोन को एक और नाम है जिसे हम कहते हैं कॉल लोन। क्या कहते हैं उसे? कॉल लोन। क्या कहते हैं उसे? कॉल लोन। नॉर्मली ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए दिया जाता है। अब मेरे बैंक के साथ अच्छे रिलेशन है, मेरा टर्नओवर अच्छा है, सब अच्छा है, एसबीआई में हमारा अकाउंट है, और बहुत इमरजेंसी के केस में मुझे भी 1 लाख रुपए की जरूरत है, कैश लोन की जरूरत है इमीडिएट। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मेरा एवरेज बैलेंस, मेरी सारी परफॉर्मेंस, मेरे बैंक के साथ सारे रिलेशंस, ये देख दुखाकर बैंक को मालूम है कि हमारा सबसे अच्छा कस्टमर है, जो हर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, इनके अकाउंट में बैलेंस रहता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी जिस वजह से इन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो ऐसे केस में कॉल लोन दिया जाता है। क्या कहते हैं वैसे? कॉल लोन। कॉल लोन जो है नॉर्मली 1 या 2 वीक के लिए ही मैक्सिमम दिया जाता है। 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में कोई बिजनेस भाग के जाने वाला है क्या? डू यू रियली थिंक एनी बिजनेस कैन रन अवे इन टाइम स्पैन ऑफ 1 और 2 वीक्स? नो। क्या 1 या 2 हफ्ते में भाग सकते हैं क्या? नहीं, कोई चीज भी इतने फास्ट सुपर फास्ट नहीं होती, और वो भी ऐसा बिजनेस को ही देते हैं जो इनके ऊपर उनको भरोसा है। जिन बिजनेस के ऊपर भरोसा है, क्या वो 1 या 2 हफ्ते में सब छोड़ छुड़ा के जाने वाले हैं क्या? नहीं, छोड़ छुड़ा के जाना। तो ऐसे केस में उन्हें कैश लोन 1-2 हफ्ते का बहुत से बैंक देती है, ज़्यादा रकम का नहीं होता, 1-2 लाख रुपए का ही होता है, और ये कैश लोन जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 वीक्स दिया जाता है। इसे हम कॉल लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉल लोन। इस लोन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें कुछ मॉर्गेज है, ना इसमें कुछ चेक किया जा रहा है, बस कस्टमर अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मांगा तो दे दिया, तो जैसे मांगा वैसे दे दिया, तो वैसे बैंक वापस भी मांग सकता है। बैंक ने मुझे 2 हफ्ते के लिए लोन दिया, कितने दिन के लिए दिया लोन? कैश लोन कितने दिन के लिए दिया? 2 लोन। तो बैंक देते वक्त ही बोलती है 2 हफ्ते के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर हमको काम गिरा तो हम तुमको पहले मंगवा सकते हैं, वी कैन कॉल बैक द अमाउंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। बैंक ने मुझे कितने हफ्ते के लिए दिया? 2 हफ्ते के लिए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वापस बैंक को भी काम आ गया, बैंक ने 1 हफ्ते के बाद वापस बोला दे हैव कॉल्ड बैक देयर मनी, वो पैसा हमें अभी वापस चाहिए, तुम्हें पिछले हफ्ते दिया था 2 हफ्ते के हिसाब से, लेकिन अभी हमें भी जरूरत है, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, राइट? तो 1 हफ्ते के बाद मुझे वापस बैंक को पैसे लौटाने पड़ेंगे, राइट? कॉल लोन या कैश लोन इस टर्म पे दिया जाता है। एक तो पीरियड उसका 15 डेज से कम रहेगा,
और 15 डेज के अंदर अगर बैंक को जरूरत पड़ी तो बैंक वो पैसे आपसे वापस मंगवा सकती है। बिफोर आप पैसे नहीं बोल सकते, नहीं नहीं तुमने तो 2 हफ्ते के लिए दिया था, अब 15 दिन रुक जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। यू विल हैव टू पे बैक व्हेनेवर डिमांडेड बैक बाय द बैंक। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? इसे हम कहते हैं कैश लोन। हाँ, इसके ऊपर नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लेते बैंक। कहीं को लेंगे इंटरेस्ट? हर चीज इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बाद में कहीं तो बैंक चार्ज में किधर तो भी उड़ा देंगे, लेकिन इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते नहीं बैठते हो। हाँ, एनीथिंग एल्स? समझ में आया? समझ में आया? राइट। अगला पॉइंट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तुमको अकाउंट्स में है क्या? चैप्टर 12th अकाउंट्स में है क्या? 12th अकाउंट्स में है क्या? उम्मीद करता हूं जब मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स की थ्योरी पढ़ाई थी शुरुआत में, उसके इसे चैप्टर समझने में इजी गया था। इजी गया था या नहीं गया था? हाँ या ना? ठीक उसी हिसाब से ये नेक्स्ट पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका पूरा थ्योरी और फंडामेंटल है कि ये किस हिसाब से ऑपरेट करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसके फंडामेंटल बेसिक्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करने पड़ेंगे जो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। विल कंटिन्यू विद सेकंड पॉइंट आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच।